Hello and welcome to our channel Government Law College Sirohi. Here we'll be discussing the law of contract 2, the unit 2, contract of bailment and pledge. I'm Vijay Kumar, Assistant Professor Law at Government Law College Sirohi. In the last lecture, we have dealt with the introduction part of contract of bailment. In this part, we'll discuss about rights and duties of parties to bailment. We have discussed the general principle underlying the contract of bailment, and we have also discussed various elements of contract of bailment. Here in this part, we will discuss about the different rights and duties of the parties to the bailment. As we know, there are two parties to the bailment. The one is bailer, the other one is bailee. The duties of bailer are given under Section 150, Section 158, Section 159, and Section 164 of the Indian Contract Act. These duties are towards the bailee. So some duties that bailer owes to bailee, and there are some duties which bailee owes to the bailer. The duties of bailer are respectively rights for the bailee, and the duties of bailees are rights for bailer. Now what are these duties? We will discuss it one by one. The first duty, which is given under Section 150, is to disclose the known facts. Bailer is duty bound to disclose the known facts to the bailee. The second one is bear necessary expenses toward the bailment. So it is given under Section 158. It imposes a duty upon bailer to bear necessary expenses. Third one is Section 159, which is to indemnify the bailee for any loss that is caused. So bailee को कोई लॉस अगर होता है बेलमेंट ट्रांजैक्शन में तो उसकी भरपाई करना जो है बेलर का काम है. The fourth one is to bound to accept the goods. So once the purpose is accomplished, the bailer is bound to take the delivery back from the bailee. Now let's go one by one. The Section 150, which discusses about duty of bailer to disclose any fault or any damage that is known to him and that is there in the goods which is delivered to the bailee. जैसा कि हम सब जानते हैं, बेलमेंट का जो पर्पज़ होता है वो होता है किसी भी गुड्स को का पोजीशन जो है ओनर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है और वो पोजीशन ट्रांसफ़र किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए. नाउ यहाँ पे जब कोई गुड्स ऐसी दो कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन इज़ व्हेन देयर इज़ एनी रिस्क अटैच्ड विद द गुड्स विच इज़ ट्रांसफर. तो सपोज कीजिए कोई ऐसा सामान है जो बहुत रिस्की है, जिसको हैंडल करना बहुत या तो कोई एक्सप्लोजिव है या कुछ इस तरह का आइटम है जो कि जिसका सेफ कीपिंग रखना अपने आप में एक रिस्क इन्वॉल्व करता है. तो इस तरह का अगर कोई सामान है तो इस बारे में बेलर का ये जॉब है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो बेली को इस बारे में पूरी तरह से अवगत करा दे या उसे डिटेल में उसकी सेफ कीपिंग के संबंध में जो भी प्रिकॉशन है वो बता दे. सेकेंड कंडीशन, सेकेंड ड्यूटी उस टाइम आती है कि अगर कोई यूज़ या इंटरफेयर करना है उसके साथ में, विच द बेलर इज अवेयर एंड विच मेटरली इंटरफेयर विद द use of them. So the bailer is bound to disclose to the bailee fault in the goods billed of which the bailer is aware and which materially interfere with the use of them or expose the bailee to extraordinary risk. And if he does not make such disclosure, he is responsible for damage arising to bailee directly from such faults. तो अगर ऐसा केस है जिसमें कि जो भी डिफेक्ट है गुड्स बेल्ड के साथ में और वो डिफेक्ट अगर बेलर बेली को टाइमली बेसिस पे इंफॉर्म नहीं करता है बेलमेंट के टाइम पे, तो उस जो है क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट की वजह से बेली को अगर कोई भी नुकसान होता है तो इट इज़ कंप्लीट ड्यूटी ऑफ बेलर टू रिकम्पेंसेट द बेली फॉर दैट लॉस वॉट एवर इज कॉस्ट. नाउ
there is an example. Let's see. If the goods are billed for hire, the biller is responsible for such damage, whether he was or was not aware of the existence of such fault in the goods billed. यहाँ पे एक जो कंडीशन है वो ये है कि अगर गुड्स को हायर बेसिस पे लिया गया, यानी एक तो जो बेलमेंट होता है वो ग्रेचुअस होता है और दूसरा होता है जो कि नॉन ग्रेचुअस होता है। ग्रेचुअस बेलमेंट के केस में ये होता है कि आप कोई चार्ज नहीं लेते हैं बेलमेंट का, और if the goods are billed for hire, that means you charge some fee or amount for the purpose of bailment. तो उस केस में रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है बेलर की। नाउ दीज आर द टू एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि ये ड्यूटी क्या है। सपोज करो ए जो है बी को एक हॉर्स किराए पे देता है, एक घोड़ा देता है जो कि काफ़ी डेंजरस है, यानी कि घोड़ा जो है वो पागल है बेसिकली, ठीक है। और बी को दे देता है, बी ए ये फैक्ट जानता है, बी ये चीज़ नहीं जानता है, और बी को अगर ए ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करता है और उस वजह से कोई भी डैमेज या कोई भी नुकसान बी को हो जाता है, तो बी जो है डैमेजेस क्लेम कर सकता है ए से, क्योंकि ए की ड्यूटी थी कि उसे जो घोड़े का जो नेचर है वो बताए। सेकेंड एग्जाम्पल है, सपोज करो कि एक कैरीज जो है हायर किराए पे जो है एक कैरीज लिया, बी ने लिया ए से। कैरीज जो है अनसेफ है, यानी कि जो उसके कैरीज के पहिए हैं वो वहाँ से मतलब वो पूरी तरह से पैक नहीं है, या वहाँ का कोई स्क्रू जो है वो लूज है, और उस वजह से वही गोइंग समवेयर बी को कोई डैमेज हो जाता है वो पहिया निकलने की वजह से, तो इसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ए की होगी, क्योंकि ए इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म। नाउ द कंडीशन फॉर लाइबिलिटी ऑफ बेलर। बेलर की लाइबिलिटी इन दो कंडीशन में राइज होगी। बेलर शुड हैव द नॉलेज ऑफ द डिफेक्ट एंड द बेली शुड नॉट बी अवेयर। फर्स्ट कंडीशन ये है कि बेलर को ये नॉलेज होना चाहिए डिफेक्ट का, और बेली के पास ये नॉलेज नहीं होना चाहिए। सेकेंड जी, द डिफेक्ट इन गुड मस्ट बी सच एज एक्सपोज द बेली टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क। गुड्स के अंदर डिफेक्ट इस नेचर का है कि बेली को उससे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क है, और उसका यूज करने से उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ हियर अगेन द सेम एग्जांपल जो हम लोगों ने अभी लिया था। हम लोग सेकेंड जो है ड्यूटी की तरफ जाते हैं। सेकेंड ड्यूटी ऑफ बेलर इज ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेज। ये बेलर की ड्यूटी है कि वो नेसेसरी एक्सपेंसेज जो है, यानी कि जो भी खर्चा होगा सामान की सेफ कीपिंग के लिए, वो जो है बेली को दे। Whereby the condition of the bailment, the goods are to be kept or to be carried or to have work done upon them by the bailee for the bailor, and the bailee is to receive no remuneration. Gratuitous bailment, the bailor shall pay to the bailee necessary expenses incurred by him and any extraordinary expenses incurred by him for the purpose of bailment। यहाँ ये कहना चाहता है कि दो तरह के बेली होते हैं। फर्स्ट इज ग्रेचुअस, जो बिना किसी चार्जेस के जो गुड्स है वो अपने पास रखता है। अगर बेली बिना किसी चार्जेस के गुड्स रखता है तो उस केस में उसे सेफ कीपिंग करने के लिए जो भी एक्सपेंसेज नेसेसरी होते हैं, या उसे स्टोर करने के लिए, या उसे ख़राब होने से बचाने के लिए, इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कि इस तरह का कोई आइटम आपने बेल किया है जो कि विद इन फ्यू डेज ख़राब हो जाएगा, ठीक है, जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, एनीथिंग जो कि बिना उसका सेफ कीपिंग के लिए आपको नेसेसरी प्रोटेक्शन लेना भी है, और अगर नहीं लिया तो वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेज या जो भी खर्चा होगा वो बेलर को, इट इज़ अंडरस्टूड, इवन दो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, फिर भी बेलर को, बेली को वो एक्सपेंसेज प्रोवाइड करने होंगे। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जहाँ पे नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है। अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है तो क्या होगा कि सिर्फ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज है वो दिए जाएंगे। नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट में ऑलरेडी जो बेली है वो अपना चार्जेस फी ले रहा है, तो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेज होते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या, ए ने हायर किया एक टैक्सी फ्रॉम बी फॉर द पर्पज ऑफ गोइंग फ्रॉम गुड़गांव टू नोएडा। तो ए जो है एक टैक्सी हायर करता है बी से गुड़गांव से नोएडा जाने के लिए। वहाँ पे एक मेजर डिफेक्ट होता है टैक्सी के इंजन में, और उस डिफेक्ट की वजह से ए को उसे रिपेयर कराने के लिए 5,000 रुपये लगाने पड़ते हैं अपनी जेब से।
नाउ दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ये 5,000 रुपये के बारे में शायद ए ने नहीं सोचा होगा जब उसने जो टैक्सी है वो हायर की थी। तो बेलर की ये ड्यूटी है कि वो इस एक्सपेंसेज को जो है 5,000 रुपीज़ को रीपे करे बी को। और जो नॉर्मल एक्सपेंसेज है पेट्रोल का, टोल टैक्स का या अदरवाइज, वो सारे के सारे बेली को बेयर करने पड़ेंगे क्योंकि ये नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट का केस है इसलिए। नाउ थर्ड ड्यूटी इज टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। इस केस में क्या, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 159। अगर कॉन्ट्रैक्ट का टाइम से पहले टर्मिनेट हो जाता है, अगर बेली टाइम से पहले अगर मान लो बेलर टर्मिनेट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उस वजह से जो भी नुकसान बेली को होता है, उस नुकसान, सपोज कीजिए कि इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट था कि सपोज करो 30 डेज के लिए बेलमेंट किया गया, लेकिन 15 डेज में ही बेलर ने बोला कि नहीं मुझे मेरा सामान वापस चाहिए, तो उसकी वजह से अगर बेली को कोई नुकसान होता है तो उसका इंडेमनिफिकेशन जो है, उसका जो लॉस का भरपाई है, वो बेली को करना, सॉरी बेलर को बेली के टुवर्ड्स करना पड़ेगा। नाउ द लास्ट वन इज बेलर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। दिस इज सेक्शन 164। नाउ बेलर इज रेस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर द फॉलोइंग। दो केसेस में रेस्पॉन्सिबल होगा: indemnify for any loss which the bailee may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give direction। अगर किसी कारण से बेलमेंट करने के बाद में बेली को ये पता चलता है कि बेलर जो है वो एक्चुअल ओनर भी नहीं है गुड्स का, और उस वजह से जो एक्चुअल ओनर होता है वो बेली के ऊपर केस कर देता है, और इस वजह से बेली को कोई नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई जिस पर्सन ने बेलमेंट किया है उसे करनी पड़ेगी। सेकेंडली, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स। सो वंस हम लोगों ने जैसे कहा कि बेलमेंट का जो पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाता है, तो जिस पर्सन ने बेलमेंट किया है, जो बेलर है, उसे वो गुड्स वापस रिसीव बैक करने हैं, यानी टाइम कंप्लीट होने के बाद या पर्पज़ अकम्प्लिश होने के बाद उसे रिसीव करने हैं वापस जो है गुड्स। लेकिन अगर वो रिसीव नहीं करता है या वो बेलमेंट का पीरियड एक्सपायर हो जाता है एंड बेलर रिफ्यूजेज टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड, देन इन दैट केस जो भी नेसेसरी खर्चा उसको मेंटेन करने के लिए, सेफ कस्टडी के लिए या उसे मैनेज करने के लिए बेली की तरफ से होता है, उसका कंपेंसेशन भी बेलर को देना पड़ेगा। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ड्यूटीज ऑफ द बेली।